नृत्य की दीवानी और अक्सर करती हूँ और बताती हूँ अपनी कला से लोगों को कहानी। नमस्कार, मैं हूँ आज की आपकी होस्ट श्रेष्ठा गोगना। नमस्कार, मैं हूँ स्वराज। फिल्मों का दीवाना यथाकथा में आपके साथ करने फिल्मों की बात। As this is the Yathakatha International Film Festival, I would like to say a few words. Yathakatha International Film and Literature Festival celebrates the connection between cinema and literature, aiming to bridge the gap between these two art forms. It offers a platform for film screening, book launches, discussions, and educational events, with a long-term goal for raising awareness and its importance. So please put your hands together for Yathakatha. तो आज इस पैनल के लिए हमारे बीच बहुत खूब लोग मौजूद हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स मौजूद हैं. So starting with the first guest, I would like Rakesh Srivastava sir to please come on the stage. Rakesh Srivastava, known as Lallan Ji from Lapata Ganj, has a 4-decade career in the film and TV industry. Starting as a child artist and graduating in theatre arts from Bharat Tendu Natya Academy, Lucknow. He also pursued music appreciation at Bhatkhande Sangeet Mahavidyalaya and film appreciation course from FTII Pune. Rakesh has been part of various plays, films and TV shows, earning recognition and awards. He also taught acting and conducted children's theatre workshops. His dedication and experience have made him a respected figure in the industry. So give big hands for him. दूसरे इंसान हमारे बीच मौजूद हैं, मिस्टर सोम चट्टोपाध्याय. प्लीज कम ऑन द स्टेज. Som Chattopadhyay is an Indian actor, director and acting training who started in Kolkata's Bharupi Theatre Group before attending National School of Drama after his graduation. He later shifted to Mumbai, becoming an acting trainer and launching No Acting Skills on YouTube. He established the actors coaching, directed his first play, The Red Lady, and concluded several workshops across India. His films credited include Master Anshuman and roles like in Mujib and Loves Bhige Hain by Sufi Kaur. So put your hands together for him. Our next guest is Swarupa Ghosh. So I request ma'am to please be on the stage. Swarupa Ghosh, a sought-after actress in OTT and film, initially worked in Delhi's theatre scene and was a part of National School of Drama Repertory Company, where she met Ibrahim Alkazi. Later, she joined Alkazi's Living Theatre and traveled the world with theatre and television associates. She is also a renowned acting coach, having trained many Delhi actors. Her film credits include Vicky Donor, Madras Cafe, War, A Blessing, Unfreedom, Piku and others. She's been acclaimed for her works in series like Scoop and The Lineup. Her filmography includes titles like War, Tooth Pari, Love Hostel and more. Thank you so much for ma'am for joining us. अब मुझे लगता है कि इतने अच्छे लोग बैठे हैं तो हम क्या ही बोले, तो हम माइक दे देते हैं उनको. और मेरे ख्याल से यहाँ को जो बोलना था वो अमित ने बहुत अच्छी तरह बोल के गए हैं जी, और उसमें अलग से हमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है. आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. हाँ, स्वरूपा जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि आरफी भी बहुत कुछ कह के गए हैं और अमित भी काफ़ी बातें करके गए हैं अभिनय और हमारी चीज़ों से संबंधित. तो आप लोगों को जो सवाल करने हैं वो अभिनय से लेकर के वो आप हमसे करें, हमें भी अच्छा लगेगा. मेरा सवाल है. ओह हाँ जी. तो आई एम श्रेष्ठा गोगना सर. आई एम द एस्पायरिंग एक्टर. तो जब आप स्क्रिप्ट आपके पास आती है कभी सामने, तो द जर्नी फ्रॉम रीडिंग द स्क्रिप्ट टू पुटिंग इट इन एक्शन, in reaction, the whole process, how is it like, आप वो कैसे easy कर सकते हैं, वो कैसे flow में जा सकते हैं? तो उसके लिए अगर आपके पास कुछ भी tips होंगी तो आप शुरू करेंगी. आपका एग्जैक्ट सवाल क्या है कि जो स्क्रिप्ट आता है उसको कैसे आप करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे क्या? like when you get the script, तो how do you
perform it on set? Like, what is the whole process? What is the whole behind the scene happening inside your brain and like in an actor's इट्स वेरी brain? डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि क्योंकि ये प्रोसेस जो है इतने सालों का है ना, हाँ जी, हाँ जी. तो अभी हमें क्या होता है, अभी और वो प्रोसेस नहीं लगता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है कि अच्छा ये है ये मांग रहे हैं. पर वहाँ पहुँचने के लिए वी हैड टू वर्क, वी हैड टू लर्न. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, दैट्स ओके विथ यू राकेश जी शोन, कि यू नो एक बात अमित ने कहा है, ये एक स्किल है. एक ज़माना था लोग सोचते थे टैलेंट है, ये गाना गाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगा, इसको गाने के उधर भेजो. एक्टिंग के बारे में तो वो भी नहीं होता था, क्योंकि एक्टिंग में जाने का मतलब, फिल्मों में जाने का मतलब, थिएटर में जाने का मतलब ये तो बिगड़ जाएगा, वहाँ कुछ भी होता है. सो इवन हमारे ज़माने में भी यही था कि अगर कोई प्रोफेशन के नाते इस चीज़ को लेना चाहते थे, उसको बहुत सी चीज़ें करना पड़ता था. मतलब I remember I was basically honors graduate. I studied English literature from Jadavpur University. So मैं जब वहाँ से निकली, बाकी दोस्त लोग सब काम कर रहे थे, तो मुझे कहते थे कि तू क्या कर रही है. मैंने कहा थिएटर कर रही हूँ. नहीं वो तो कर रही है, काम क्या कर रही है. सो इट वॉज नेवर कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन. एंड जो लोगों को प्रोफेशनल बोला जाता था वो फिल्मों में कुछ सालों तक काम कर चुके. Today it's not the same. Today there are ways you have to learn it. You have because it's if you want to take it as a profession. जैसे अगर कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, पहले कोई डॉक्टरी के स्कूल में जाएंगे, मेडिकल पढ़ेंगे, anything. So I think now what has happened is you have to become a trained actor. Now another thing is that a lot of people are doing it without being trained. They're learning on the sets. And they're great actors. They're good actors also. But the difference lies in the fact that a trained actor would take less time to reach there. And an untrained actor takes much more. उसको टाइम देना है, वो देना है. ये वही होता है कि जिसको बिरयानी पकाना आता है, जो शेफ है, उसके लिए 2 मिनट का काम है, कुछ भी मिल जाएगा वो कर लेंगे. और जिसको पता नहीं है उसको दे हैव टू सी, अच्छा क्या लिखा है, कौन सी है मजा. एंड इट्स नॉट दैट दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट दे विल रीच मच लेटर. सो आई थिंक ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. और सोशल मीडिया के नाते क्या हो गया है, ये जो 10 मिनट्स या 10 डेज़ का फेम पे लोग घुस रहे हैं ना, उनको लगता है कि इन्फ्लुएंसर बन गए, इतने फॉलोअर्स है, सो I can act also. Unfortunately, it's not their fault alone. We belong to an industry where people are taking those people because they feel that they'll have a lot of audience. But as Amit said, this will only stay for a while. It's a temporary thing. Because people, after a point, will want to see something which is good, something which really, really kind of impress their sensibility. It's not just ho raha hai chalne do. So I think this is something the youngsters must realize, ki it is something for which you need to get trained. I remember I saw Rupa Ganguly's jo Draupadi play kiya tha ek zamane mein interview recently, and she was saying ki till the point I did not work with Mrs. Sen, that is Aparna Sen, and सोहाग सेन बहुत बढ़िया डायरेक्टर, एक्टर, ट्रेनर है. Till the point I didn't meet them, I had no idea that I didn't know the basic rules of acting. You know, she actually learned, and I think this is very important for youngsters to understand. That's about it. तुम्हारा जो सवाल था, इनके आगे की बात मैं तुमसे करता हूँ. तुमने जो कहा कि एक एक्टर को स्क्रिप्ट मिलती है तो कैसे काम करता है, कैसे, पहली चीज़ तो ये जानना ज़रूरी कि एक्टर करता क्या है. मेरे ख्याल से एक्टर एक कैरेक्टर को जान देता है. दैट्स व्हाट आई फील. एक एक्टर, देखो इसका एक प्रोसेस है. एक लेखक, नाटककार या कोई स्क्रिप्ट राइटर
एक स्क्रिप्ट को लिखता है, डायरेक्टर उसको कंसीव करता है, उसको विजुअलाइज करता है और वो अपने एक्टर के साथ अपने विजन को उस कैरेक्टर के लेके शेयर करता है। एक्टर उसको पढ़ता है, सुनता है, समझता है। तब जब वो यहां से समझ लेता है तब उसे यहां से महसूस करता है और अपने बॉडी और वॉइस से उस किरदार का टोटैलिटी में निर्माण करके प्रस्तुत करता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो तुम्हारे सवाल के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अभिनेता के जो 4 अंग हो गए, बॉडी, वॉइस, माइंड एंड सोल, इन चारों पर उसको काबू पाना पड़ता है। जब वो काबू पा लेगा, उसको काबू कर लेगा ना, तब कोई भी लेखक किसी भी तरीके के कैरेक्टर को तुमको देगा करने को, कोई भी डायरेक्टर उसको किस तरीके से विजुअलाइज कर रहा है, किस तरीके से कंसीव कर रहा है, उसको यहां से सुनेगा, सोचेगा, समझेगा, यहां से महसूस करेगा और इसके बाद वो अपने बॉडी और वॉइस से उसको प्रस्तुत करेगा। तो अभिनेता के लिए जरूरी ये है, इस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है और उस प्रोसेस से गुजरने के लिए उस पर काबू पाना जरूरी, इन चारों चीजों पर। और वो काबू पाने का ही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हाँ, और चूंकि काबू पाना चूंकि एक अभिनेता एक जिंदगी में कई जिंदगी जीता है, तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे कि कहा, आप ये सोचिए कि आप यहां से सीख करके आगे आपको एक बेसिक्स बता दिया जाता है, लेकिन आज तक हम सब जो बैठे हैं रोज आपसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी को ही तो प्रस्तुत करते हैं, मेरे ख्याल से। हाँ जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। सो आपने एक बात बोली थी कि ट्रेन्ड एक्टर्स होने चाहिए, तो वो ट्रेन्ड एक्टर्स विद डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आएंगे कि थिएटर से शुरुआत करनी चाहिए? ट्रेनिंग जो होती है वो आपको कोई भी थिएटर स्कूल में जब आप ट्रेन करते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है मुझे लगता है कि थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर। बात यह है कि जब आप सीखने जाते हैं तब आपको कोई फिल्म के लिए या थिएटर के लिए नहीं सिखाया जाता है। आपको एक एक्टर बनने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सिखाए जाते हैं। अब उसका कहाँ पर आप अप्लाई करेंगे वो आपकी अगली वाली जर्नी है कि आप स्टेज पे करेंगे या आप कैमरा के सामने करेंगे या आप रास्ते में करेंगे, कि वो रास्ते में भी होता है परफॉर्मेंसेस। सो वो डिफरेंस जो है वो स्पेस की है, एंड देन इट्स अप टू द एक्टर कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ, इसमें क्या करना होता है मुझे, उसमें क्या करना होता है, ये है। सो जहाँ तक एक्टर की सवाल होता है, मैं कहती हूँ कि हम लोग अभिनेता है, कहीं पर भी छोड़ दो हम कर लेंगे, बात ये है। पर कुछ लोग उस, आई डोंट नो, सम पीपल आई थिंक फील डिफरेंटली। आई ऑलवेज फेल्ट कि इट्स माई जॉब, अगर मुझे जहाँ पर भी रखोगे मुझे वहीं पे करना है। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। पर हाँ, थिएटर क्या करते हैं, मैं एक बात ज़रूर समझती हूँ, थिएटर आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, बिकॉज देयर इज़ नो रीटेक। आप 500 लोगों के सामने खड़े हैं और 500 आँखें, 500 मतलब पेयर आँखें, मतलब 1000 आँखें आपकी तरफ देख रहे हैं और आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचानी चाहिए। यू डू फील नेकेड, you do feel naked, it's very difficult, it's not an easy job to do। पर जब, और वहाँ पे कोई रिटेक नहीं है, गड़बड़ हो गया तो हो गया, you have to manage it। I remember एक चीज़ मुझे याद है, मैं जब पहली दफ़ा थिएटर करने गई थी, वो एक रेगुलर ग्रुप था और सारे मुझसे काफ़ी बड़े थे, तो मैंने कहा था कि यहाँ प्रॉम्प्ट नहीं होता,
तो मुझे कहा गया था कि उन ज़माने में 75 रुपये का टिकट हुआ करता था हाई स्केल कलकत्ते में, 50 या 50 था। तो मुझे कहा गया था कि लोग ये पैसे दे के तुम्हें देखने आ रहे हैं, यू हैव नो बिजनेस टू फॉरगेट योर लाइन्स। ये मेरा पहला शिक्षा था थिएटर का कि लाइन्स भूलने की आपकी कोई चांस नहीं है, आप कर नहीं सकते हो। सो यू नो, बात वही है कि दैट गिव्स यू एन अमेजिंग कॉन्फिडेंस। तो मुझे जो लगता है थिएटर आपको एक लाइव ऑडियंस के साथ जो कम्युनिकेशन का जो रास्ता है वो आपको समझाता है, कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आप कुछ भी छिपा नहीं सकते हो, जो है वहीं पे है। गड़बड़ हुआ तो वहीं पर हुआ, और ये होता रहता है। थिएटर का मज़ा यही है कि आप अपने कॉस्ट्यूम रख के गए हो, आप जाके देख रहे हो आपके कॉस्ट्यूम कोई दूसरा पहन के चला गया है। ये रेगुलर क्राइसिस, नाड़ा नहीं मिलना पजामे की, आपकी पजामे की नाड़ा लगा के कोई और चला गया है, आप ढूंढ रहे हो आपको सीन में जाना है। ऐसे बहुत कहानियाँ होते हैं। इट्स वेरी अलाइव मीडियम। तो उससे और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, यू बिकम एक्सट्रीमली अडॉप्टिव टू द सिचुएशन। मतलब कहीं पर भी फेंक दो कोई भी थिएटर एक्टर को या कोई एक्टर को, वो निकल के आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई रिमेंबर मिस्टर इब्राहिम अलकाजी टेलिंग मी वंस दैट यू नो, इफ योर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ or your aspiration towards life does not change doing theatre, you're not doing theatre, you're doing something else. It's bound to change you as a person. It's bound to change you as a human being. ये बहुत important है। तो मुझे लगता है कि I don't think कि it's about theatre training. It is about training of that skill. अब वो skill को आप कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ये आप पर है, और ये सिर्फ आप पर नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी आपको देगा कौन? क्योंकि ये एक जगह है जहाँ पे भाई बहुत धक्का मुक्की चलता रहता है। सो दैट्स इट। शोम, तुम कुछ कहो इसके बारे में। कह तो दिया। हेलो एवरीबॉडी। सो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, यू नो, फॉर मी। मेरा जितना भी कुछ 12 इयर्स, सो 12 इयर्स लगभग हो गया। मैं बंगाल के किसी एक गांव से हूँ, वहाँ से कोलकाता। देन फॉर्मल ट्रेनिंग है मेरे पास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो दिल्ली में 3 साल, देन बॉम्बे में 4 साल काम, सारी चीज़ें। तो इसके दौरान जो एक चीज़ हुई, एक्टर बनना था, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, सर्कमस्टांसेस, कोरोना की वजह से सबके ज़िंदगी में चीज़ें बदली, तो मैं भी वो एक्टर्स ट्रेनर बन गया धीरे धीरे। तो लोगों को ट्रेन करने लगा, और एक चीज़ मुझे महसूस हुई कि उसके ज़रिए मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में रह रहा था, क्योंकि हमेशा थिएटर करना पॉसिबल नहीं होता है हर जगह। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में रहने के दौरान जब वो ट्रेनिंग हुआ था, एक फॉर्मल ट्रेनिंग, तो उसके वजह से मुझे ये पता चला था कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं बंगाल के किसी कोने से हूँ, तो मुझे पता नहीं था बॉम्बे किस तरह मैं एक्चुअली बचपन में, क्योंकि उसकी ज़रूरत कभी नहीं थी। तो मैं अभी यहाँ हूँ, वहाँ से आते आते तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स, जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोगों से मिलना, तो बहुत चीज़ें देखी, ज़िंदगी के बारे में पता चला। मेनली ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, फॉर मी इट्स रिक्रिएटिंग अनदर लाइफ। आप किसी दूसरे ज़िंदगी को रिक्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रूथफुली उस चीज़ को आपको क्रिएट करना। लाइक मैं किसी से गुस्सा हूँ, अगर मैं उसको बोला आप वहाँ खड़े रहिए, हाँ उधर साइड में, हाँ, सो मैंने अभी उनको बोला तो शी रिएक्टेड लाइक, so yeah, okay, so it's like very seriously I'm saying these things because I believe। तो इसके लिए चीज़ें हैं, जैसे सर भी बोल रहे थे, मैम भी बोल रहे थे, तो हमारे नाट्यशास्त्र में 4 चीज़ें लिखी हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। तो आहार्य आपके कॉस्ट्यूम्स होते हैं। आप कितना भी चाहे मैं पुलिस वाले की तरह यहाँ बैठ के बात कर लूँ, आपको नहीं लगेगा मैं पुलिस वाला हूँ, तो वो कॉस्ट्यूम। बट आंगिक, वाचिक और सात्विक जो सोल कनेक्शन है, और आंगिक आपका बॉडी, और जो वाचिक हैं आपके आवाज़ हैं। सो ये चीज़ों पे कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक अभिनेता को पानी की तरह होने की ज़रूरत है, कि उसे किसी भी पात्र में डाल दो
उस पात्र जैसा आकार धारण कर ले, तो इट शुड बी लाइक अ क्ले। तो इसके लिए आपको हमेशा वो ट्रेनिंग जो मैम ने कहा कि आप क्विकली कर सकते हैं, लाइक मैं 2 एग्जाम्पल मेरे पास, मेरे अभी 2 काम रिलीज हुए, एक सूफी स्कोर में लफ्ज़ भीगे है, तो मुझे वो एल्बम के लिए सिलेक्शन हुआ मेरा, और मैं एक लेक्चर के लिए NIT रौरकेला, तो उन्होंने कहा 2 दिन में पौंडीचेरी आना है, गाने का शूटिंग है, ऐसी बात हो गई। तो मैं पहुंचा, रात के 10 बजे मैं पहुंचा, मुझे पता चला मुझे साहिल लुधियानवी प्ले करना है एंड प्राची देसाई इज प्लेइंग द अमृता प्रीतम, और 10 बजे जब पता चला 6 बजे शूट है, तो मैं वो साहिल लुधियानवी, अब कैसे साहिल लुधियानवी के बारे में मैंने NSD में थोड़ा बहुत सुना था, 2-4 हमने गज़लें पर जो लिखा है उनका कविताएं पढ़ी थी, तो फिर उतने में आपको सोना भी है, यू हैव टू लुक लाइक अ फ्रेश फ्लावर, और वो कैरेक्टर करना है, और तो 3 दिन शूट है, तो कैसे उस चीज़ को किया जाए। तो मैंने बस YouTube पे जितना सर्च हुआ वो पढ़ा किया, और मैंने अपने तरीके से किया। तो आई थिंक जब स्क्रीन पे देखा तो सारे लोगों ने कहा अच्छा है, अच्छा। अब मुझे पता था कि मैंने एक्चुअली क्या किया। तो बहुत बाद में जब रिलीज हो गई तब जिन्होंने लिखा अजय जी, तो उन्होंने मुझे साहिर साहब के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे सोम तुमने तो बड़ा, तो मुझे लगा कि मैंने एक्चुअली क्या किया। तो वो जो थ्रू ट्रेनिंग उस बॉडी में जाना, और जो बोलना कि आप सीधा खड़े रहिए, या फिर आप, मैं ऐसे बैठा हूँ तो मैं ऐसे बैठा हूँ तो अलग होगा, मेरा जो पिच है, वॉइस, वोकल ट्रेनिंग्स, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। आपके बॉडी के इंटेंसिटीज़ होते हैं, ये लाइट्स इंटेंसिटीज़ हैं, इसको मैं कम कर दूँ तो लाइट कम हो जाएगा जैसे। तो आपके इमोशंस के अलग अलग इमोशंस हैं, बेसिकली उसको हम नवरस बोलते हैं, बट वो भाव है, रस तो अलग, ऑडियंस के अंदर वो कनेक्शन सेंटिमेंट्स हैं, तो भाव हैं अलग अलग। तो वो ये हमारे लिटरेचर में जो एक, तो जो कनेक्ट करता है सबसे ज़्यादा नाट्यशास्त्र की बात होती है, जो लगभग 100 BC में लिखा गया कहते हैं। तो उसको अगर सही तरीके से जाने देखें तो हम सारी चीज़ें जान पाएंगे, और ये एक ऐसा प्रोसेस है, मैम कह रही थी कि ये आपको बेटर बना देता है, अपने आप को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके साथ हर चीज़ का कनेक्शन है, जैसे साइंस का भी कनेक्शन होगा, आप बायोलॉजी से लेके आप साइकोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी तक आप पहुंच सकते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट स्पिरिट एंड नोइंग योर सेल्फ मोर, आई डू बिलीव। तो आप वैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करती हैं कि हाउ टू ट्रांसफर द एनर्जी, सो इसके लिए यू नीड अ ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि बिना ट्रेनिंग के नहीं कर सकते, मैम सर वाज टॉकिंग अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट जो ट्रेनिंग्स होती हैं तो आप उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं अपने क्राफ्ट में, जो हम कहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आपको होना है। एक सर्टन लेवल तक हम रुक जाते हैं, एंड आई डू बिलीव काम करते यस दिस इज एंड को हम चीज़ों में काम करें। मैं रोज़ काम करता रहता हूँ अपने ऊपर, और मुझे इम्प्रूवमेंट खुद से महसूस होता है। योर ब्रीदिंग्स, योर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीदिंग्स, सारी चीज़ें, तो आपके पास बहुत चीज़ें हो जाती हैं और आप उस चीज़ को करने में सक्षम बन जाते हैं। जो आप सोचते हैं, हम सोचते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मैं अगर सोचता हूँ किसी चीज़ में, मैं ना थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ही बात करूँगा, मैं अगर सोचता हूँ तो फिर वो सोचना है वो, अब ये इंसान कैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग तरह से होगा, तो वो फ्लो में जाना, डायलॉग याद रखना, इतनी सारी मतलब एक प्रेशर हैंडल करना, जो मैम बोल रहे थे कि थिएटर किस तरीके से हेल्प करता है। तो आई थिंक ट्रेनिंग इज, हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, वो है कि यू नो दैट इज़ द डिफरेंस, कि सोचते सब कोई है। कोई भी किताब आप उठा रहे हो, कोई भी कहानी आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में एक चित्र तैयार हो रहा है, हमारे दिमाग में भी वही चित्र तैयार हो रहा है, ठीक है। अब उस चित्रों को एग्जीक्यूट करना, उसके लिए जो स्किल चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उसको सही ढंग से वहाँ पर पहुँचाना, ये ट्रेनिंग आपको हेल्प करता है। और एक चीज़ होता है कि ट्रेनिंग में, विच आई फेल्ट दैट यू बिकम नॉन जजमेंटल एज अ पर्सन, क्योंकि हमें हमारी सोशल स्ट्रक्चर में, या हम जिस तरीके से बड़े होते हैं, एक वैल्यू सिस्टम है जिसमें दे टीच यू दैट दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज गुड, दिस इज बैड। But when you're asked to play a role which is probably, a negative character, there's no negative, because the person who's playing it, he thinks that's positive. I mean, if you take Iago, he thinks I'm right. It's like that,
सो उससे एक आई थिंक वो खुद को भी पहचानने में आपको हेल्प करता है, क्योंकि दैट्स वेयर द होल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट्स कमिंग. एंड सेकेंडली you also start looking at that person's perspective, because most of the time in real life we like to feel that I'm the correct one, he's the wrong one. You tend to, so it really makes you much more patient, much more tolerant of things as you grow. If you really, really connect with the art, that's what it does, because आप सुनेंगे नहीं तब करेंगे कैसे, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है. एंड इसीलिए आई थिंक दिस वन आस्पेक्ट विच इज़ नॉट बीन डेवलप्ड इन आवर कंट्री सो मच, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पीपल आर डूइंग इट नाउ. जब लोग एक्टिंग को प्रोफेशन के नाते लेने की सोचते हैं, देखिए क्या करते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे शाहरुख खान बनना है, या ये बनना है, या वो बनना है. ज़रूरी नहीं है कि आप वो बन पाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये जो शिक्षा है ये वेस्ट गया है. क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग इन ब्रिटिश स्कूल फॉर 17 years, टीचिंग GCSE and IB drama, and I realized drama is one of the most brilliant tool to change your life, to change a student's weakness into strength. Unfortunately, हमारे देश में बहुत कम जगह है जहाँ पे ड्रामा हैज़ बीन टेकन टू द क्लासरूम्स. मतलब I was very lucky to be part of the teaching faculty in British School, where we had cross-curricular activities. And in that, what used to happen, drama is used in a history lesson to teach history. So it came to a point when we used to go in another school and train the teachers how to use drama in their classroom. Whether it's literature, whether it's geography, whether it's science, even maths. Rhythm and music has been used to teach maths. In the most rural areas of Africa and places, they do it. They train you. The differently abled children, जिसे हम कहते हैं, they actually react to drama and music much, much more. So, ज़रूरी नहीं है अगर, और मुझे ये बात आज कहना बहुत ज़रूरी लगता है, यंग स्टार्स आजकल अपने खुद की एक्सपेक्टेशन यहाँ तक बढ़ा चुके हैं. उसके लिए टेलीविज़न, सोशल मीडिया इज़ इक्वली, ऑल्सो द पेरेंट्स, आई एम सॉरी टू से दैट, they're responsible to it, because their expectation from the child at times borders to absolutely illogical and impossible. Absolutely. Because I think everybody is into that rat race. उसके बच्चे को 95 मिला है, तुम्हें कैसे नहीं 95 मिला है? I would like to ask him, आपको कितना मिला था? I mean, I think it's very, very, illogical कि दोनों पेरेंट्स में किसी को 35% मिला है, किसी को 45% मिला है. यू आर एक्सपेक्टिंग योर चाइल्ड टू गेट 95% एट वन गो. हाउ? वाई? Is he become a lesser human being? Will he become a lesser human being? And I think the teaching community is also not looking at them. They're so focused on कि मेरे student को इतना मिला है. A teacher's job is to create the future of the society, future of the world, a complete human being, not a money-making machine. I mean, Corona has proved money is not going to save you in any way. No way. So मुझे लगता है कि we really have to look into it, and drama plays a major role in that. And once you understand the importance of drama or acting, the youngsters who are committing suicide, there's so many actors, believe me, so many youngsters. Even 2 days back, there's a youngster who's just committed suicide. Unbelievable. So I think it's very important to understand the multi-layer of this profession.
and to really encourage them to do that. Look at Barry John. I've worked in his play. What a fantastic trainer. What a brilliant actor. And he's devoted whole life to that. Saurav Srivastava. All these people, they're doing amazing work. Unfortunately, until and unless we stop being so starstruck about this profession, it's, I'll be very honest. I have worked in this profession now probably 45 years. I joined at the age of 16 and I'm 61 today. I'm very bad in maths. कितना हुआ? 16 से exactly उल्टा गया मैं. मैथ्स इतनी अच्छी होती तो मैं 45 years probably है. I have met amazing actors. I have worked with amazing actors whom hardly people know. वो अभी भी थिएटर करते हैं या फिल्म में छोटा मोटा रोल करते हैं, स्कूल्स में एक्टर्स को ट्रेन कराते हैं. वो अभी भी उसी एक सिंपल कपड़े पहन के घूम रहे हैं. आप बैठे रहेंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा कि वो एक्टर है. वो जब स्टेज में आता है आपको दूसरी तरफ नज़र मतलब फेंकने की वो ही नहीं लगता है. So I think what we need to understand that of course this particular profession adds a glamour, as a glamour quotient to it. I'm not denying it because we are not always available. We find it difficult, not because we don't want to be, but our life does not allow it. It's not so easy. People think it's very nice. People are, standing at your hand and feet. No, it's crazy. Like 14 or 15 hours a day, you are under these harsh lights. You don't even get enough time to go back and have a good sleep. It's not easy. You can't eat certain things. You can't do certain things. Am I wrong? It's very, very true. Not because there's no other way out. This is the demand of the profession. A runner cannot be obese. A racing car driver cannot be an alcoholic. So it is hard work. What is happening now is that people tend to completely ignore the hard working aspect of it. They want it very fast. आज मैंने फोटोग्राफ अपलोड किया, कल तक मेरा कितना फॉलोअर आया. वेरी गुड, डू इट. There is nothing wrong in it. But are you sure why you're doing it? What exactly are you searching for it? Look, I'll tell you one thing. There's no concept of free lunch, There's no concept of free lunch in life. Nothing substitutes hard work. वो बहुत कम लोगों के पास होता है कि लक इतना काम कर गया कि उसको सब मिला. बिलीव मी, वो कहते हैं ना, God helps those who help themselves. There's very, very hard work behind it. आसानी से कुछ भी नहीं मिलता. I met Mr. Bachchan when I was doing a film with him called Piku, and I was amazed that in my 23 days of shooting schedule, 23 days or 21 days, anyway, our call time used to be same, okay? And he was 72 years old at that point of time. और 6 या 6:30 बजे हम लोगों का कॉल टाइम होता था. सो गाड़ी आती थी. मैं जब भी आती थी मैं देखती थी उनकी वैनिटी वैन के सामने कोई खड़े हैं, मतलब वो आ चुके हैं. इस 21 दिन में मेरे को भी ना सनक चढ़ गया कि मैं तो उसको बीट करूँगी. मैंने 2 दिन बीट किया है उसको टाइम में. और पता है कितने मिनट के लिए? एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स. मेरी हैबिट हो गई थी, गाड़ी घुसी में घड़ी देखती थी कि टाइम पैर निकल कितना बजा है. 2 दिन जो मुझे लगा कि मैं आ गई हूँ, नहीं है उधर, पाँव पीछे आ गए गाड़ी. आई हैव सीन दिस मैन be ready on the set before anyone else, rehearsing one scene forever, going on and on and on. He didn't need to. He doesn't need to, right?
He's a superstar, legend. Why does he need to? It's all about making yourself better. You know, एक बहुत अच्छी बात किसी ने कहा था मुझे, अलकाजी साहब ने, अपनी भूख कभी मरने मत देना. Be always hungry to get the best out of it. Only then it's possible. What I feel is that we become very content with very, what should I say? I wouldn't even say it's contentment. Contentment होता तो इतना suicide, इतना depression की cases नहीं होती आज के ज़माने में. I think it's like this unlimited hunger for the wrong things that has created this. You know, so I really, because I think that acting can be used in multi-faceted way. उसकी सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है. वो not only आपको, you know, it will help the next generation. I think it will also give a lot of, assurance to a lot of other youngsters in our profession who are just killing themselves because they're not getting work. Just like that. मतलब OTT प्लेटफॉर्म भी कम पड़ रहा है, टीवी बहुत, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है, लोग बहुत आ रहे हैं एंड दैट्स अ गुड थिंग. आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. हम तो जायज़ हो गए भाई, इतने सालों से जो नाजायज़ थे कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो किया नहीं, ये सब चीज़ें थिएटर वाले हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. इट्स नॉट ऑल अबाउट ग्लैमर. यू नो, you do it correctly, that will follow you automatically. That's all. I'm sorry I talk. यहाँ दो बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ. जो मैम ने कहा कि थिएटर और उनके एक्सरसाइज का इस्तेमाल, अभी क्या हो रहा है ना कि जितने कॉरपोरेट कंपनीज हैं यहाँ पे, उनके साथ मैं जुड़ा तो हम वही एक्सरसाइज उनके साथ करवाते हैं, उसको दूसरे नाम पे करवाते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप. और मैडम ने एक शब्द बहुत अच्छा कहा, हम लोगों में कमी क्या है, हम सुनते नहीं हैं. तो मैं 2-3 लाइनें क्षणिकाएं लिखता हूं, तो उसमें मैं जीवन का सार डालता हूं. सुनो, सुनो, सोचो, अपनाओ. सुनो, सोचो, अपनाओ और जीवन को सफल बनाओ. अगर हम इन 3 बातों पर ध्यान देंगे तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, कुछ भी करें, आप हमेशा एक मुकाम जरूर हासिल करेंगे. बस. मैम, जैसे आपने एक्टर्स का जो फेमस होने का बोला, एक शाहरुख खान और सलमान खान का, एंड मैंने सलमान खान का नाम नहीं लिया, मैं जनरली इन लोगों के नाम बता रही हूँ. उनके रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहा हूँ. सो एक एक्टर का डेफिनेशन, मतलब आजकल ऐसा हुआ है कि सक्सेसफुल होना या फिर उसका वो हमें दिखना चाहिए. अगर समझो कोई मुझे पूछ रहा है कि तू क्या कर रहा है, और मैंने उससे बोला कि हाँ मैं एक्टिंग करता हूँ या एक्टर, तो वो बोलेगा मैंने देखा नहीं, देखो कहाँ पे करता है तू. तो एक एक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो स्टेज पे पहुंचना या फिर उतना फेमस होना, या कि उतना फेमस ना हो कि भी वो स्टेबल हो सकता है सिर्फ एक्टिंग करके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. मुझे 22 साल लगे इस शहर में धीरे धीरे काम करते करते, जैसे कि अभी इसने बताया ये लल्लन जी के नाम से जाने जाते हैं. 22 साल लगे. इसका मतलब क्या हुआ? अभिनेता को सतत प्रयास करते रहना चाहिए. वो किस दिन ऊपर पहुंचेगा, किस दिन नाम होगा, किस दिन वो मुकाम हासिल करेगा, वो समय पर छोड़ दो. एक आप जो पूछ रहे हो वो है पहचान की बात. हाँ, आप किस लिए ये कर रहे हो ये जानना बहुत ज़रूरी है. आप पहचान के लिए कर रहे हो या ये चीज़ आपको अच्छा लगता है. मुझे जब कहा जाता था, पूछा जाता था, देखिए मेरी शक्ल सूरत ऐसा नहीं था कि मैं
स्टेज पर भी जाऊं, बंगाल के स्टेज के जो नायिकाएं होते थे वो बहुत खूबसूरत होते थे और उसकी कद भी मुझसे काफ़ी छोटे होते थे बंगाल की। हाँ, छोटे लंबे बाल, आवाज़ मधुर। अब आवाज़ तो पता ही चल रहा है लड़का या हाँ, मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई कि लोग फ़ोन पे उठा के पूछते हैं हेलो मिस्टर घोष। आज भी 50 साल के बाद मैंने बोलना छोड़ दिया। हाँ, नहीं वो आपको लग रहा है मैडम, पर जब आपको कहा जाता है ना मिस्टर घोष, तब आपको मतलब क्या बोलूँ मैं, हाँ बहुत ही बुरी हालत होती है। सो व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अप ऑन स्टेज, मुझे मतलब लोग पागल सोचते थे, ठीक है। द पॉइंट इज मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं पहचान के लिए नहीं गई थी। मैं बहुत छोटी उम्र में थिएटर में एक्सपोज थी। मुझे ये जो लोग किरदार निभाते थे डिफरेंट किस्म के, मुझे लगता था कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मुझसे ये पॉसिबल है। तो वही ट्रायल और वही उसी चीज़ के लिए मैं भागती थी, करते करते आज यहाँ पहुँच गई। तो मुझे लगता है कोई और रीज़न हो ही सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है बेटा अगर आप लगता हो कि नहीं मुझे पहचान चाहिए, बिकॉज एवरीवन वांट्स एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सबको चाहिए अप्रिसिएशन। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रेजल इन अ कॉर्पोरेट डिविजन इज ड्यू टू दैट, राइट। उसमें कोई पर वो किस लिए चाहिए ये बहुत ज़रूरी है, कि मैं काम सही तरीके से कर रही हूँ इसलिए चाहिए, या मेरा अच्छा और भी तरीका होते हैं कि इसलिए चाहिए। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, जो भी हो, आप उन लोगों से पूछ के देखेंगे वो बहुत काम कर चुके हैं। उसको बहुत, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं कि बहुत पापड़ बेलने पड़े। सो जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आता है। हो जाने के बाद लोग सोचते हैं ये हुआ था, इधर गए थे इसलिए। जैसे कि ये बोल रहे हैं, अब कितने कहानी बताओगे कि किस किस पड़ाव को क्रॉस करके यहाँ पहुँचे। ये होती है बात। थैंक यू मैम।